आज हम दूरदर्शन केंद्र आइजोल में हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मेरे साथियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और चूँकि आज बहुत ही ख़ास कार्यक्रम है, तो इस ख़ास कार्यक्रम को और ख़ास बनाने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीश वर्मा, जो सह आचार्य है मिज़ोरम विश्वविद्यालय के। हाँ, और जैसे कि हम सभी को पता है, अतिथि देवो भवः, ये हमेशा भारतीय परंपरा की रीत रही है। तो हम अपने अतिथि का स्वागत सत्कार करने के लिए जाएंगे और मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीश वर्मा अपने स्थान से पर खड़े हो जाएं और हमारे हिंदी अधिकारी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी उन्हें पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ वो हमारे कार्यालय प्रमुख से मैं अनुरोध करूंगी कि वो हमारे छोटी सी मेमेंटो को हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें। उतारना पड़ेगा सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे कार्यालय प्रमुख श्री अभिजीत मजूमदार, जो डिप्यूटी डायरेक्टर और हेड ऑफ ऑफिस है, स्वागत भाषण के लिए। आप सबको हिंदी पखवाड़े के समापन पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 15 दिनों में हम लोगों ने हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी के कार्यालय में हिंदी में काम करना और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रतियोगिताएं, काफ़ी काम किया और उसका हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस परंपरा को हम कायम रख सके। I just congratulate to you people for observing this Hindi fortnight. For the last 15 days, we were indulged in promotion of Hindi. We were indulged in various competitions and learning Hindi and to promote the language, and in such a way that at least Doordarshan and DDK Aizawl can do some work in Hindi. You know that whenever I issue an ICMs, I try to get it bilingual, though it is difficult for me to type in Hindi, but still I try it and I get it issued in the bilingual, both in Hindi and both in English. And I would like that you people at least learn some words of Hindi, because earlier also I have already said you that whenever you visit outside Mizoram, whenever you go outside the state, or so Hindi is the language, because not everyone can communicate in English. So Hindi is the easiest language in which you can communicate. You can communicate in Hindi in Calcutta. If you go to Delhi, you can communicate in Hindi. Even if you go to Bombay, if you go to Pune, if you go to Goa, in all the states, at least Hindi is the language through which you can communicate with each other. Though English is also another language, but if you go to the lower strata of the society, for example, if you want to communicate with a rickshaw puller or a garbage worker or something, so at least it is the Hindi that they understand, whether it is a broken Hindi or something. So it is better to learn some basic words of Hindi, at least the numeric values and some basic words of Hindi, so that we can communicate more efficiently and more properly. And since you know that all the job opportunities are now in the north and the west of India and something in the south, so our children may go out and they may work over there, they may study. Some may study in Chennai, some may study in Rajasthan, some may study in Bangalore.
So besides English, at least if they know Hindi, some words of Hindi, it will be easier for them to communicate in Hindi. With this again, I again congratulate you for this wonderful occasion and all this wonderful arrangement which was done by our Hindi team, and wish you another happy fortnight for this Hindi. Okay, thank you very much. हमारे कार्यालय प्रमुख श्री अभिजीत मजुमदार जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. वही नाहियानिन कंशियाता कंखानी हिंदी फोर्टनाइट क्लोजिंग फंक्शन कन मंगमेक अनिया है हु नाहियानिन लिचिना कन सोइता कंखानिन ख्वाल जाउम पो कन नया कन जिंगा एमजेट इउला lama changin Dr. Amish Verma po minrontel pui theya kan lom takje zeta tin Doordarshan hian englai po hianin Hindi lama ma kan son theina tura tan hianin chan ala in hetia anglam pang program te po hin na satakin ati chuak fo thin ti po clear to ten kan mu fo karinga voina hianin Hindi lama ke mani Doordarshan lama kan thil lo ti ve thin te po kan ron tar lang don ani ti kha min lo shiat sakula tin voina hianin kan staff te po tam the ang ber tel toring kan hanin soma kan tel thei ni in langa kan lom tak zet zet bok ani. अब हमारा अगला कार्यक्रम होगा. कार्यक्रम ही मैं कहूँगी इस माहौल में संगीत बिखेरने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे सुजन सुनार को वो यहाँ पर आए और हम सब को संगीत की दुनिया में ले जाएं. तालियों से इनका स्वागत करें. कुदबेगी नीलौ लवंग. गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या. मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे. मेरे गाँव में है वो जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे. उसे मेरे प्यार का जाम दे. वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा. मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ. मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे. है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पयाम दे. उन्हें जाके तू ये पयाम दे. मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा फिर
आंचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था निभाऊंगा वापस आऊंगा एक दिन आऊंगा एक दिन आऊंगा एक दिन आऊंगा माहौल में संगीत बिखेरने के लिए हम सुजीत सुनार को धन्यवाद देते हैं तो नाचवानिन थुसई तोरिन kan head of program pusi vanal siama kan lo som do nanga ani hian thu aron soi zo a hianin durdarshan ina zai thiam kan nei pi la ramza wi chong thu kan program executive kha zai turing kan som don bok ani lo in ring lok se achange अब हम लघु भाषण के लिए अपने कार्यालय प्रमुख श्री सी वानल श्याम को अनुरोध करते हैं। Respected Chairman, or distinguished Chief Guest, and member of Official Language Implementation Committee and my dear colleagues. Today I feel honored to have been given a chance to deliver a short speech. Being a member of this Official Language Implementation Committee, I will deliver my speech in Hindi. Whether I speak fluently or read the script, it doesn't matter. The more important thing is to deliver speech in Hindi, which is the official language. दीदी के आइजोल प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी पखवाड़ा मनाते समय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस साल भी बिना किसी बाधा के हिंदी पखवाड़ा मनाने के बाद आज हम समापन समारोह मना रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के सुचारू रूप से मनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने वाले हमारे हेड ऑफ ऑफिस अभिजीत जी, श्री O.P. त्रिपाठी ADE एवं हिंदी ऑफिसर और डॉक्टर जेनी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के महत्व बढ़ाने के लिए आए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीश जी का शुक्रिया अदा करते हुए उपस्थित सभी साथियों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंदी। वाह, क्या बात है। ये है हमारे कार्यालय कार्यक्रम प्रमुख कन हेड ऑफ प्रोग्राम निया। सर, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना उन्होंने क्या कहा था? हाँ, स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आए हैं। हिंदी सैखा और छियार छुआखा अमाजिया थवनिया अमाय रोजु मोई तका रंछियार खा दो वांखानिन सै स्वाल लौते दो वांखान रंछियार खानिया है कन हिंदी मंग हो kan ho tu te pokhan an shethiam vekani ro pui kho mai wa indi anga hindia thu sai thei kan han ne kha kan chuang khop mai ti kha kan sai le du bok ani। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे कार्यालय के जो बहुत लोगों में से एक है जो बहुत सुरीली है, हमारे कार्यक्रम निष्पादक है श्रीमती रमजा विचोंगथू, जिन्होंने कई गीत भी लिखी है और खुद गाती भी है, लिखती भी है और उनके कई मिज़ो भाषा में जो गीत लिखी गई है काफ़ी प्रसिद्ध भी है पूरे मिज़ोरम में। मिज़ोरम लाते अजियाक छीना ललार तक तक ते पोखा लो फुआ तो छीना अमा पोजाई छीना कन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पिला रमजा विचोंग थोजाई तोरी निलो सोमंग।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। दूरदर्शन थोकते हिंदी लमाह्यानिन कंदवाई लु तुकलौती तेखचु कंशेतलांग तुरा गंगाया नकिना कंपटीशन कन्नेया लोमन लाते पोखा अनला रन स्वाक दोन हेला ह्यानिन तिनतुना जाय लौते पोखा जाय थियम दंग कन्ने कंती खा बइना ह्या गनन शोवेक सेंग दोन लवा अमै रो चु हुंदंगा ते पो हन इन तारलन ना हुनते चु अलम तुरांगा इला अठांग तुना चवानिन हिंदी फोर्टनाइट कन्ने इचुंगा कंपटीशन संग संग कन्ने दानते खा रिपोर्ट तोयते कनहन पे दोनंगा अब हम इस हिंदी पखवाड़ा के दौरान जो विभिन्न प्रकार की
प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। पहले मैं हिंदी से बोलूँगी, फिर उसके बाद मिज़ो भाषा में आप लोगों को बताऊँगी। जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम प्रमुख ने कहा था, हम प्रतिवर्ष यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, और हिंदी पखवाड़ा मनाने से पहले हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि 14 सितंबर को ख़ास तौर से मनाया जाता है। लेकिन चूँकि इस साल 14 सितंबर जो है शनिवार को था, इस कारण से उस दिन हमारा ऑफिस बंद था, इसलिए हमने 17 तारीख को हिंदी दिवस मनाए थे यहाँ पे हमारे कार्यालय में। और उसके बाद से 18 तारीख से हमने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जो खास करके हिंदी शुद्ध पाठन, जो मिज़ो भाषी लोग हैं उनके लिए 2 भाग में हम अपने इस प्रतियोगिता को बांटते हैं। एक जो मिज़ो भाषी लोग हैं उनके लिए रखते हैं, और जो एक है जो थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, बृहद हिंदी का ज्ञान रखने वाले और लघु हिंदी का ज्ञान रखने वाले, इस तरीके से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो ये हिंदी शुद्ध पाठन जो है वो मिज़ो भाषियों के लिए रखा गया जाता है, और कई लोगों ने इसमें भाग भी लिए हैं। और इसके अलावा वाक्य बनाना और अनुवाद करना, ये भी बहुत ही सरल रूप से हम प्रश्न बनाकर क्या कहेंगे, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा कदम है। और इसके अलावा गायन प्रतियोगिता भी हम लोग रखते हैं, जो सबके लिए ओपन फॉर ऑल होता है, सबके लिए, उसमें सब लोग भाग ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मिज़ो भाषी या किसी भी भाषा के बोलने वाले हैं, उसमें भाग ले सकते हैं गायन प्रतियोगिता में। और इस साल हमारे जो कार्यालय प्रमुख श्री अभिजीत मजूमदार जी ने हमारे बैठक में ये कहा था कि हम प्रतिवर्ष मनाते तो है, लेकिन जो हमारे MTA स्टाफ वाले हैं उसमें क्यों भाग नहीं लेते हैं। इस बार उनके लिए एक खास प्रतियोगिता रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी आगे आए, आगे बढ़े, हिंदी को समझने की वो लोग कोशिश करें और हिंदी में उनकी रुचि बढ़ सके। और इसलिए इस साल हमने पहली बार MTS वालों के लिए एक प्रतियोगिता रखे थे, जो अनुलेख है, उनको देखकर लिखना है। 1 घंटे का समय दिया गया था, सिर्फ 15 पंक्तियाँ थी, जो कि 1 घंटे में भी नहीं हो पाए अधिकांश लोगों के तो, लेकिन बहुत ही उत्साहपूर्वक उन्होंने भाग लिया है, और काफ़ी उन्हें भी अच्छा लगा और हम सभी को भी अच्छा लगा कि इस तरीके की आइडिया देने के लिए हम एक बार फिर से हमारे कार्य प्रमुख का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने, आज भी मैंने सुना है कि अगले साल तो मैं दूसरे प्रतियोगिता में भी भाग लूँगी या भाग लूँगा, इस तरीके से उनकी, मतलब वो लोग काफ़ी प्रोत्साहित हुए, उत्साहित हो गई। इसलिए मुझे भी अच्छा लगा, जो कि ज़्यादातर यहाँ का हिंदी का कार्य मुझे ही देखना पड़ता है, तो अनुलेख काफ़ी अच्छा पहल थी। और इसके अलावा हमारे कार्यालय में जो हिंदी के पत्र आते हैं और हिंदी के जो पत्र हम लोग भेजते हैं, तो उसको रजिस्टर में हिंदी से लिखने के लिए भी हम लोग एक प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष देते हैं, और इस साल भी हम लोग देंगे। तुना कन सोइता कंखानिन हिंदी फोर्टनाइट छुंगियानिन ये कंपटीशन संग कन्ने छिना कुमदंग आफे चवानिन हिंदी चोंगमंग ले हिंदी मिजो चोंगमंग तान कंदा संग छिना कुमिना हियानि मिजो चोंगमंग तान बी खानिन कनहंते अछनचु हिंदी चोंगमंग बी का तेल तुरखा कन्ने तमवक लो वांखानिन चुता चवानिन हिंदी इंचार से आते कंतिया तीन चुबा का चवानिन सेंटेंस यामा ट्रांसलेशन ते कंति बोका तीन चुबा का चवानिन कंति nge chinchu singing competition hi ni a chuta chwanin hindi tongmang pon tel theya mizo tongmang pon tel theya chongsang sangmang kha enge atel thei ani he hi kan tuipui berchin ania ma se kumin hi du ahianin participants kan thatok lo viawin alanga amai ro chu kumdanga phei chwanin nge music tinen lam chungin nasatikin kan be thina ni
tin chu ba ka chuanin nichina kan soita ang khanin enge inzia sia kha MTS sautan hianin kan pu ber hianin an tel ngai lo sia an ni hi tel ve se tha ang enge hindi te an lo tui pha anga hindi lama te an ru te an lo pek pha ta kin ti in kha meeting na khanin arot na ange cho kan handa kan be se ange in kan MTS unaw te po khanin an ron tel tha em ema an han zia ka azia chung zonga ang te po kan oma har sa kan tilu tu ka hindi azia ka no panlaya an zir kha tu nu a kum som ni som thum nu velan han chun zom kha an tan chon har sa ve reng donin ka ringa amai ro chu an ti tha em ema tin achen khat phei chuanin nakum lama chuanin competition danga te po ka tel phang ka tel to ang ka inziranga kumti ra teng kan inziranga te antia kha khana satakin enge khathil khanin an mani a thua soini ti kha alan khanin abwa sai tu tan po khanin anwam ve ani chuanin kan ho tu pa berina khatiang idea min pe po kha alom om lein ka sia tin chuba ka chuanin kan office atanga hindia lekha kan thon chwale hindia lekha kan donte registera loziak lut tu hi kan nei thina chungte po chu loman kan pe thina ni hindia wanga thil hote kan ti po hian in loman hi akeng tel deu zel maya hindi hi chu enge abig riawa enge hindi tong chan akhas riawa kan ti don mi chu wang chuanin hindi kan thil ti te hian chuanin kongro asua omzia aneya enge kan zawai tan athatlan na ani awang khanin India sarkar pon choisana tumna se ema chu duration po hian thei top cho in keima ni zinga te po khanin khatiang khanin competition sang nei in ma kan la kan thei ang tok kan lo chwa ve thina ni ti kha kan tar lang du ani tuna chuanin kan program lama kan lo kal chhole don to anga अब हम अपने अगले कार्यक्रम में चले जाएंगे जो कि कविता पाठ है मैं अनुरोध करना चाहूँगी जेम्स जोसांगलियाना जो कि हमारे टेक्नीशियन हैं वो यहाँ आए और कविता पाठ करें तालियों से हम उनका स्वागत करें कलामे हिंदी पकोड़ा kan nei pi ti hian kon phang thina voin po tun chu po han kan miss jeni khan program dom dona ron tel the teng lo che ron bo se che me ti ma se ka thiam to ni kum ka zir kha ka thegil vek to ka ti mar chu ti lot ni te chuan alam mo tang ti ya chuan zan ni khat kan en non le di han karan ti don chu ne ke ma phu pa ni chu lo wa phu sa om sa ka zir ve khan thowa chu wang chon ne a poin bo box ya thu te google te kan en thina a thu hi lo tra em box hi wangin mizo tong han le hial the ka du boka chu karang se do ne chu हिंदी हमारी परिभाषा ये विषय है ये लिखी गई एक अभिषेक मित्र ने जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी जिसने कल को जीत लिया है ऐसी कलासी भाषा है हिंदी सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है इसको बोलने में कोई शर्म नहीं सम्मान अनुभव करना चाहिए जय हिंद धन्यवाद बहुत बढ़िया सही ठखो मैं मिजो हो पन अथु ठले मैं लो ती सब मैं हिंदी जो कन लो शेत लांग नहीं ही जेम्स जो सान लेना चुंगा लोम थु कन सही तक जे जेता हिंदी कन थियाम लांग व्याव मैं नी ती खा अरन लांग छौ जुआलिन का शिया
hey loman te kan han sem chodo na loman kan sema singing competition na pakhat na te kha zai tura kan do chang kan request thei don nya ti te po kha kan tar lang du bo kani tunge ni don khan la in shimya lawa chan chu result kan buat sai hianin tuma hi loman pakhat nei la don pani nei la don pathum nei la don ti hi puan zara ni ngai lawa heta amuna khan kan lo kala loman hi surprise de winan dong chin ani khate ang khan kum ina po hianin pakhat na ni tur po khan ani don ti kha in shimya lawang ti kha karinga chu kan kalpui thin dan ni shimshima tin hindi bi ga hianin ma kan son na se emema tuna kan mutak ang khan ente entirnan zaite thusoite recitation te po kan han ena khatiang akhanin durdarshan thok te po khanin kahi mani the ang tokin hindi hi kan lo be ve ni ti kha alang chiang zwalin kha kha in lo muve tu po in ni awangin kha kan soi lang tharle du ani अब मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और हमारे पुरस्कार वितरण के लिए, चूँकि पुरस्कार वितरण यहाँ पर कार्यक्रम में रखा है लेकिन आज डिजिटल का ज़माना है, तो मेरे ख्याल से अभी तक उनके जो धनराशि है, जीती हुई धनराशि, वो जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति में ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट में चला गया, अभी तक तो उनके अकाउंट में जा भी चुके होंगे, लेकिन आज हम प्रमाण पत्र देंगे सभी जो हमारे कंटेस्टेंट्स है विन आह्यानिन तुनकन स्वेता कंखानिन digital khowela kanom to awangin apoisa hian kan sem to ngai lawa tuna hian chuanin an account na po alolu der to mai the ni khanga loman nong tu te ho kha chu certificate ro kan sem anga chuanin kan certificate te min sem saktoring kan chief guest kan som anga hemi certificate asem zo hianin thote po soingal toring kan som donani अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीश वर्मा को, और इस प्रमाण पत्र वितरण के बाद वो अपनी बात भी रखे यहाँ पे कोप्यांग खा रंग तकिन रन कलंगातिन मिपुई ते खानिन अन्ना सथयांग बेरिन कुत कन लो बेंग दोन्या। हिंदी शुद्ध पाठन में प्रथम पुरस्कार जाता है श्रीमती ललबी अखलूनी। द्वितीय पुरस्कार श्री जेम्स जोसांग लियाना, जिन्होंने कविता पाठ पढ़ा था। खलतुर खान खुलम खुयन उस तरफ देखना है। और तृतीय पुरस्कार श्रीमती केलर रिनपुई। ये हिंदी शुद्ध पाठन का है। वाक्य बनाना एवं अनुवाद सोलम सो जिसमें प्रथम पुरस्कार श्री जेम्स जोसांग लियाना। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती ललबी अखलूनी। अनि नि छोक जक सकनी अंथियाम ले में। तृतीय पुरस्कार श्रीमती केलर रिनपुई। अब गायन सिंगिंग कंपटीशन ना पखतना। प्रथम पुरस्कार श्रीमती ललफली। आप इनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं बाद में। द्वितीय पुरस्कार आर्लियन सांगपुई। और तृतीय पुरस्कार श्रीमती केलर रिनपुई। केलर रिनपुई को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुई हैं। अनुलेख में
थुइन जियासिया का प्रथम पुरस्कार बुद्धिमान जोशी रनलाक सकमई तचो वो नहीं है तो उनके स्थान पर द्वितीय पुरस्कार श्रीमती ललब्याक नुंगी उसको नहीं लग रही है so long और तृतीय पुरस्कार श्री माइकल VLMS दोंगलियाना और हिंदी पत्र को रजिस्टर में हिंदी से लिखने के लिए श्री ललबुलथांग जी को हाँ धन्यवाद सर प्लीज शुक्रिया जेनी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिजीत मजुमदार जी, दूरदर्शन केंद्र के हिंदी अधिकारी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, मंच संचालन कर रहे जेनी और यहाँ उपस्थित तमाम देवियों सज्जनों। चीफ गेस्ट डॉक्टर अमीश वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर मिजोरम यूनिवर्सिटी चुन हिंदी फोरनाइट कन्मन छुंगा इंटी सियाक ना तेल लोमंदोंग तिनेना लोमपुई न थु असोया निखचौ इंटी सियाका तिथामै निलवा कुमट्रो ना हिंदी आन थोकले हिंदी लमा मसोन नै तिनेना लोमन ही पेक थिनी से अठा इन अलोक अरिन को असैबोक हिंदी दिवस ले हिंदी फोरनाइट मन अनि अपियांगा हरि शंकर परसाई थुजिया हिंदी दिवस अपियांगिन हिंदी ट्रोंग मंगतेन हिंदी ट्रोंग मंगतेन हेना वो इंचू हिंदी या इंबियाक टूर अंति थीन हिचू थुलुंग छिया ठाक नि आशिया थुसोइन खोवेल पुंपुया हिंदी ट्रोंग चौ ही अनि मनंगाई ट्रोंग ओमछुन अनि मेला ट्रोंग दंग रेंग रेंग hi नि मनंगाई एमो अशना नि हनमंग छिन अन ओम कशेलौती इन हिंदी दे कन मनिन वेना चवान हिंदी चौ hi kan manganga हिंदी ट्रोंगिन एंग एमोतल कसोयंगा अनि लोपोइन हिंदी तलिन सिग्नेचर का पे ang kan ti thin hi हिंदी ताना जा ठाक nge ani a हिंदी ताना चोय मोइना कशेलौ हिंदी दिवसा हिंदी दर जावनान हियान एंगे कति अंगा एंगे ति इला छबेरंग ति आ kan ngei to achin hi kan kalsan ang hun to in kasya achan chu mani pian pui tong ni lote po in हिंदी ट्रोंगिन वो इन आपो थूते सोइन इन मे अलविन रेसिटेशन ते अन सोई kan ngai tha a kan huboka he hiana entir chu zoi moang in kan ram mun kil tina हिंदी ट्रोंग shia le mang the kan pung chho shet shet ti hi ani boina hyang ka soidu chu हिंदी ni kan mang do ani po in han huam zau de ulek ila हिंदी ले kan rama ट्रोंग sang 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 tam tak omte mun gil khor le amang tu lem chho wanga ट्रोंग bo mek te hum hala amang tu an pun the na tura tan lak chho hi ahun to tak chitin ka sha हिंदी ले इंडिया rama ट्रोंग dang ni te hi han mang kop thei to ila adu om le in ka sha ti in हिंदी ट्रोंग chowa india ram kan identify don ani chuan kan ti swal le ang achan chu india ram chu nam je sang sang trong sang sang sikle sa inang lo tak tak ba ka ele bar thlenga nei sang te chen na ram ani awangin trong pakhat chau manga kan identify chuan kan ti dik lawang ti in heng nam zia le nun thung sang sang te hi kan bel chiana kan sha chian ba ka kan nun pui na sat pau le kan ram hi kan mangai don ani ti thu asoi bok ani sap trong man war a in hindi emo kan pian pui trong emo hi mang warila hindi a ka ti thei lo chu mizo kani chuan mizo trong in ti meila kan rama trong sang sang te hi mang na sa in tilarila ram chang ka kan ni mai don ani ram chang ka kan ti entirnan japan te korea te russia le China te hian sap trong an thiam lo ani mia lo ma se an trong ngai lo ani achan chu khovel nam ro pui te trong hi kan man wara kan choilar chuan ke mani trong hi aral mai don ti an chat wangani kan fa te po hi sap trong chau thiam tura kan ti chuan a chevel mi zong zong nen kan in latir don ani achan chu abul pui nen kan in latira api le pu ten sap trong an thiam lawa an then om naw ten an thiam lo phei chuan ma ni muna misang angin om chho mai don ani kan trong hi mangaila mangwarila
za pui lovin chol sangila tin chuba ka chuan hindi hi subject pakhata chawni lovin subject dang te po hindi injir thei turin tran la ila kanram chuan ma son pha nge yang ti in soya hindi fortnight mang tura kal khon zong zong te du sakna alhan thu asai zui bok ani भाषाओं की समृद्धि और उनके उत्थान की कोशिश होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदी से ज्यादा जरूरत उनको है जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है, जिसमें काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। कई भाषाएं मर रही हैं। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की पूरी उसका एक पूरा सर्वे किया और उसमें बहुत सारी भाषाएं दुनिया की और उसमें भारत की भी कई भाषाएं शामिल हैं जो मर रही हैं, जिनको बचाने की जरूरत है। तो अगर हमें भाषा का कोई दिवस मनाना है तो उसको हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं के दिवस के रूप में मनाया जाए। इस मंच से मैं ये एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और बहुत खुशी की बात है कि ये प्रस्ताव इस बार दूसरे और बहुत सारे लोगों ने दूसरी जगहों पर भी अपने वक्तव्य में रखे हैं, क्योंकि जिसको हम भारत कहते हैं और जिस हिंदी से हम भारत की पहचान को जोड़ते हैं, उस भारत की पहचान केवल हिंदी से नहीं है। उस भारत की पहचान उन तमाम भारतीय भाषाओं से है, उन तमाम संस्कृतियों से है जो भारत की अपनी संस्कृति है। भारत कोई एक संस्कृति, एक भाषा, एक लिपि का देश नहीं है। भारत की खूबसूरती ही यह है कि वह अपने तमाम पक्षों में, भाषा, साहित्य, भूगोल, इतिहास, सब में आप देख लीजिए भारत कई तरह की चीजों से मिलकर बना है। वो विविधताओं का देश है। हम विविधताओं का उत्सव मनाते हैं भारत में। हम किसी एक चीज का उत्सव नहीं मना सकते। जिसको हम भारतीयता कहते हैं, उस भारतीयता में उतना ही हिंदी बोलने वाला शामिल है और उतना ही मिजो बोलने वाला शामिल है। हम कई बार उसको थोड़ा संकुचित कर देते हैं। हम उसको एक खास भाषा तक संकुचित कर लेते हैं, हम अपने दायरे तक संकुचित कर लेते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो होता है वो केवल वही होता है जितने को हमने देखा है। इसीलिए जब हम अपने भारत को जानते हैं तो शायद हम उससे ज़्यादा प्यार कर पाएंगे। जब हम अपने भारत की और भाषाओं को जानेंगे तो शायद हम अपने भारत को ज़्यादा जानेंगे और शायद भारत को हम सच्चे अर्थों में जानेंगे और तब उससे हमारा लगाव होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है एक निबंध में कि देश किसी भूखंड का नाम नहीं है, देश किसी जमीन या किसी इलाके का नाम नहीं है, वो वहां के लोगों से बनता है। और जिसको हम देश प्रेम कहते हैं वो किसी जमीन के टुकड़े को प्यार करने को नहीं कहते हैं। हम वहां के लोगों से, वहां की प्रकृति से, वहां के परिवेश से जब जुड़ते हैं तभी हम देश प्रेम जैसी चीज कह सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी बात को एक दूसरे तरीके से अपनी एक चिट्ठी में लिखा है कि जब कोई किसी देश पर बम गिराता है तो बम गिराने वाले को दुख क्यों नहीं होता? बम गिराने वाला कैसे इतना संवेदनहीन हो जाता है कि वो किसी खास इलाके पर, किसी देश पर बम गिरा पाता है? उसकी जो व्याख्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है वो ये कहते हुए की, और ये चिट्ठी उन्होंने तब लिखी थी जब वो हवाई जहाज से पेरिस की यात्रा कर रहे थे 1914 में। हवाई जहाज से नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं या वो चींटियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं से उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे हम अपनी पृथ्वी से दूर होते जाते हैं, पृथ्वी से हमारा जो चेतन लगाव है वो खत्म होता चला जाता है। और तभी आसमान से जो बम गिराने वाले सैनिक हैं, चूंकि उस पृथ्वी से वो उनका चेतन लगाव खत्म हो गया है, उनको दिख नहीं रहा है कि नीचे मरने वाला कोई 5 साल का मासूम है या 70 साल का बूढ़ा है या कोई महिला है या कोई पुरुष है, मरने वाला कौन है वो देख नहीं रहा है। तो जिसको हम देखते नहीं हैं उससे हमारा चेतन जुड़ाव नहीं हो पाता। ये इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि जिस भारत को हम राष्ट्र समझते हैं वो उतने ही दूर को हम भारत राष्ट्र समझते हैं जिसको हमने देखा होता है या जिससे हम अपना लगाव महसूस करते हैं, जिससे हमारा चेतन लगाव होता है। उत्तर प्रदेश में बैठा आदमी, बिहार में बैठा आदमी या दक्षिण भारत में बैठा आदमी जो जीवन में कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आया, जिसने जीवन में कभी
मिजोरम को नहीं देखा और मिजोरम के लोगों को नहीं जानता है, उसके भारत में शायद मिजोरम शामिल नहीं होगा, उसके भारत में शायद पूर्वोत्तर शामिल ही नहीं होगा। और आप देख सकते हैं आज देश की स्थितियों को देख के आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि मराठी समझता है कि हिंदुस्तान का मतलब महाराष्ट्र है, दक्षिण भारतीय समझता है कि हिंदुस्तान का मतलब दक्षिण भारत है। पूर्वोत्तर के लोग बाध्य कर दिए जाते हैं यह समझने के लिए कि आप शायद थोड़े कम भारतीय हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी हमारे देश में, ये इसलिए बनी क्योंकि हमने भारतीयता को कुछ थोड़ी सी चीजों के साथ एसेंशियलाइज्ड करके जोड़ दिया। नामवर सिंह अपने भाषण में कहते हैं कि दरअसल भारतीयता या राष्ट्रवाद का जो पूरी अवधारणा है वो कई बार थोड़ी संकटग्रस्त और थोड़ी समस्या मूलक इसलिए भी हो जाती है कि हम उसको कुछ खास चीजों के साथ एसेंशियलाइज कर देते हैं, मतलब अनिवार्य तत्व के रूप में उसके साथ हम जोड़ देते हैं। दरअसल आज इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदी भारतीयता का एक तत्व है, लेकिन हिंदी मतलब भारतीयता अगर हम समझने लगेंगे तो हम जबरन जो दूसरी भाषाएं हैं उनको किसी न किसी रूप में कम भारतीय या अभारतीय बनाने की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि हिंदी दिवस को हमें हिंदी और अन्य तमाम भारतीय भाषाओं के दिवस के रूप में मनाना चाहिए, अगर किसी भाषा के लिए हमें दिवस मनाने की जरूरत ही है तो इस रूप में क्यों ना हम आज हिंदी दिवस के दिन, और तब जब हम मिजोरम में खड़े होकर यह बात कर रहे हैं, हिंदी दिवस को हम इस रूप में मनाएं कि जो हिंदी नहीं जानता या जो हिंदी नहीं बोलते वो तो हिंदी बोलना सीखें, और जो हिंदी बोलते हैं वो मिजो बोलना सीखें। ये जब तक दोनों तरफ से ये संबंध नहीं बनेगा, हम साल में एक बार या 15 दिन हिंदी का उत्सव मना लें या ढोल पीट लें, ये चीजें शायद उस तरह से या उतनी तेजी से नहीं बदलेंगी जितनी तेजी से बदलना चाहिए। एक और बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये जब से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जब से यह सिलसिला शुरू हुआ 1949, 14 सितंबर 1949 के बाद, ये तभी से एक ऐतिहासिक गलती हम करते रहे हैं और वो आज भी कर रहे हैं कि हिंदी बनाम अंग्रेजी का जो आंदोलन था, अंग्रेजी के मुकाबले जिस हिंदी को हमें खड़ी करनी थी, उसके बदले हमने दूसरी भारतीय भाषाओं के मुकाबले हिंदी को खड़ा कर दिया। अंग्रेजी तो हिंदी से आगे चल रही है, सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी तो टोकनिज्म के सहारे चल रही है। अभी जो हिंदी में काम करता है वो पुरस्कार पाने के लायक हो जाता है, और मैंने भी कहा कि उनको और पुरस्कार दीजिए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस भाषा का दिवस हम मना रहे हैं उस भाषा में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ रहा है, अंग्रेजी ने उसकी जगह ले ली है। तो इसको थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत है। हिंदी को अंग्रेजी के मुकाबले खड़ा करना है, दूसरी भारतीय भाषाओं के मुकाबले खड़ा नहीं करना है। इसलिए जब हमें लगे कि हम हिंदी में यह काम नहीं कर सकते हैं तो हम मिजो में करें, बजाय अंग्रेजी में करने के हम उसको मिजो में करें। हम अपने को एक्सप्रेस करें, हिंदी में नहीं कर सकते हम मिजो में करें। जैसे बहुत सारे लोग मिजो नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं, हम दुभाषिया रख लेंगे। आप देखिए जो देश अपनी भाषा के बूते आगे बढ़े, जापान हो, कोरिया हो, रशिया हो, चाइना हो, इन देशों में ऐसा नहीं है कि वहां के लोग अंग्रेजी नहीं जानते या वो नहीं बोल सकते। भाषा वो जानते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमने उस साम्राज्यवादी भाषा को स्पेस दिया, हमारी अपनी भाषा उसी दिन से मरनी शुरू हो जाएगी। आप हिंदी की हालत देख लीजिए, कंप्यूटर पर आज भी काम करते हुए आपको हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो 50 समस्या है उसमें। एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में नहीं बदल सकते, बदलेंगे तो कॉमा जो है वो डब्बा बन जाएगा। यूनिकोड के आने के बावजूद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप जैसे ही हिंदी में टाइप की हुई चीजों को लेके जाएंगे वो सब चिपक जाएगा। पीडीएफ बनाएंगे तब वो फॉन्ट बदल जाएगा। ये समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी का विकल्प मौजूद है। जिस दिन अंग्रेजी का विकल्प हम खत्म कर देंगे उस दिन हम सच्चे अर्थों में हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए ज्यादा स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। हिंदी का संकट दूसरा है
एक लेख योगेंद्र यादव का मैं पढ़ रहा था इधर पिछले कुछ दिन, 2-4-5 दिन पहले। उसमें उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही कि हिंदी का विस्तार हुआ है, हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या पहले से बहुत बढ़ी है। पिछले जनगणना के मुकाबले अगर आप देखें जो 2011 में हुआ था, उसके मुकाबले अगर आप अभी देखें तो उसके बोलने वालों की संख्या में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन संकट एक दूसरा यह पैदा हुआ है कि विस्तार तो हुआ है उसका, लेकिन उसकी गहराई कम हो गई है। गहराई कैसे कम हुई? हिंदी बोलने पढ़ने और समझने वाले लोग तो हैं, लेकिन वो खुद काम हिंदी में नहीं करते हैं। जैसे यहां बैठे हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन काम अंग्रेजी में करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारी भी मजबूरी है कि काम हमें अंग्रेजी में करना पड़ता है। हिंदी विभाग का कई सारा पत्र अंग्रेजी में निकालना पड़ता है, क्योंकि जो भी परिस्थितियां हैं वो सब आप जानते हैं। हमारे अपने बच्चे हम चाहते हैं कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ें। हम में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत खतरनाक भी है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं घर में भी। हम उनसे घर में वार्तालाप करते हैं अंग्रेजी में। ये इतना खतरनाक है। आप देखिए हम अपने बच्चों को कितना असामाजिक बना रहे हैं, उसको अपारिवारिक बना रहे हैं। उसको अंग्रेजी कैसे, कोई कहेगा कि अंग्रेजी बोलने से कैसे असामाजिक बनेगा, वो तो और ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, वो हो सकता है अमेरिका के लोगों से कम्युनिकेट कर ले, ब्रिटिश लोगों से कम्युनिकेट कर ले, कॉर्पोरेट जगत में जाके उसको काम करने में बहुत आसानी हो सकती है, लेकिन वो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दादा दादी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। उसका पड़ोस का जो बच्चा है वो शायद अंग्रेजी नहीं बोलता, तो वो अपने आसपास से कट जाएगा। हम अपने बच्चों को अपने आसपास से, अपने परिवार से, अपनी जड़ों से काट रहे हैं। तो संकट हिंदी का दरअसल हमारे घर के भीतर है। कार्यालयों में तो फिर भी कुछ टोकन के आधार पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का संकट हिंदी बोलने वाले के घर के भीतर पैदा हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं। आज के दिन कहना तो यही होगा और कहा जाना भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करें, हिंदी पढ़ें, हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाएं, हिंदी को चिंतन की भाषा बनाएं। जो दूसरे अनुशासन हैं हिंदी साहित्य के अलावा, जो दूसरे विषय हैं, दूसरे अनुशासन हैं, समाज विज्ञान, इतिहास, विज्ञान, उसको अधिक से अधिक हिंदी में पढ़ने लायक सामग्री तैयार करें। अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए हिंदी की किताबें तैयार करें, ताकि उनको पढ़ने की एक आदत बने, हिंदी पढ़ने की एक आदत बने। इसी तरह से हम अपनी भाषा के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, और उस भाषा में बोलने वाले को गर्व और गौरव का एहसास हो, ऐसा महसूस कराने के लिए हम यही कुछ कर सकते हैं कि हिंदी ज्ञान की भाषा बने। आज इस मौके पर आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हमारे बहुत सारे मीज़ो साथी यहाँ हैं जो शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे हिंदी में। सुबह मैंने अपनी एक स्टूडेंट से कह के कि हिंदी में मुझे ये कहना है, उसके लिए आप मीज़ो में ज़रा मुझे कुछ बता दीजिए। मैंने जो मैसेज दरअसल मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे मीज़ो भाई बहनों को यहाँ पर, अब मैं नहीं जानता कि मैं मीज़ो में इसको कैसे और कितना बढ़िया पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैसेज आप तक पहुँच जाएगा। जैसे आपकी हिंदी से हम समझ जाते हैं, मेरे मीज़ो से आप उस बात को समझ लीजिएगा। हिंदी इन थिल सोई तामजिर उला मिजोरम पोना इन कल्पो अनि तान तंकाई दोन लुतुक इंडिया मुन शांग शांग इनकल हुना पो इन बुआइलो अंगा इंटान थिल तिहवेल पो ऑल सम आंग। शायद मेरी बात आप तक पहुंची हो। इसमें मैं कहना यही चाहता हूं कि आप हिंदी बोलें, हिंदी बोलने का अभ्यास करें। इससे मिजोरम से बाहर आपको बहुत सहूलियत होगी। ख़ासतौर से सर ने भी अपनी बात जब कही थी तो उसमें सर ने कहा था कि जैसे ही आप मिजोरम से बाहर निकलते हैं,
आप भाषाई तौर पर थोड़ा लाचार महसूस करेंगे। तो हिंदी अगर आप बोलते हैं तो शायद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपका काम तो चल जाएगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा एकेडमिक काम वहां ना कर सकें हिंदी में, हो सकता है आप लंबा चौड़ा भाषण ना दे सकें, लेकिन जैसे हम लोग अपना काम मिजोरम में चला लेते हैं टैक्सी वाले से पूछ के कि कितना लोगे जाएंगे और सामान खरीद लेते हैं, उतना काम तो आप हिंदी बोल के चला लेंगे मिजोरम से बाहर। इसलिए हिंदी बोलने का अभ्यास करें। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी सहूलियत के लिए है। अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी को अपनाने की कोशिश करेंगे तो इससे हिंदी का तो क्या ही भला होगा, हिंदी तो सबका भला कर रही है, हम सब का भला होगा। शायद हमारा देश और आगे जाएगा और शायद एक पुल की तरह हिंदी हम सब के बीच काम कर सकेगी। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कलो में मुख्य अतिथि जी का मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। अपनी बातों को कहने की जो क्या कहेंगे कला है, कोई इनसे सीखे। क्योंकि मैं देख रही थी जो हमारे हिंदी बिल्कुल एक शब्द भी नहीं जानते, वो भी कितने मग्न होकर सुन रहे थे। ऐसे उनके चेहरे से ऐसे लग रहे थे कि वो समझ रहे हैं। हाँ, सच में मुझे लगा, कई बार मुझे लगा कि उन्हें समझ में आ रही मतलब कि उनमें वो कला है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और आकर्षित करके लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया जा सके, वो कला है सर में वो आज मैंने देखा है। तो ना कन गई ठाकता अंखानिन हिंदी सोएखा अंगा इनम बोकनी करेगा हिंदी ट्रोंग थियाम लो पखान ओ लोग तो खां कन लोंगाई थलमा असोई थियामा असोएखा अठाए में बोकनी अमेना चुआनिन इंडिया रम ही यूनिटी इन द मिड्स ऑफ डाइवर्सिटी गंती चोंग संग संग ओमा हेंग चोंग संग संग ही कन था थम तोरनी लो अबिक तकिन मिजोरम चुआन मिजो चोंग ही कन चोय सांग तोरनी कन गाय सांग तोरनी कन मंग सन तोरनी हिंदी ही कन मंग तोरनी इंडिया रम चुआन पोइमो अमै रोचु मिजो कन्नी चुआन मिजो ही कन था थम तोरनी लो देखा अरन सोया अधिक कतिया नकुमला माते चुआनिन हेतिया अंगा हिंदी दिवस ते हिंदी फोर्टनाइट ते इनमांग लेनी पो इन मिजो एंटीनान मिजो ट्रोंग मंग हो तांग खानिन हिंदी या कंपटीशन हन नहीं उला मिजो ट्रोंग थियाम लो हो तांग खान मिजो कंपटीशन हन नहीं ता उला अवन छदोने मतिया अधिकले इन कशिया कन ट्रोंग ते ही के मानी हियानिन कन चोइसाना कन मन न सता कन गई सान लो चवानिन पोन लमा चंग खचवानिन रोन गई सान मुत खा हर सदोननी चुवांग चवानिन अथिल सोइखा ngai tua ngai tak mai thil ni in kashia mizo kan ni chuanin kan tong hi kan ngai sang turani tong dang hi kan thiam turani apoi mo em amai ro chu ke ma ni tong kan nam tok nge kha kan hu chhia tlat chuanin nam chang kang kan ni theidon lawa nam mat son kan ni theidon lo bokani chu tiang bok chuan india rama tong sang sang te hi lutna an nei veka heng an lut na hi nangle ke hianin kan choisan lo chuanin pon lammi chu amiron choisan sakdon lawa voina hianin sap tong hi kan manglar na से एमा अमै रोचु इंडिया रमा खोई स्टेट मा ते ही खोई स्टेट मा हियानिन साप ट्रोंग ही अन मादर तंग तुमा अन ओमलवनी हे चु पोन लम चंग रोन लूट अनि कन ngai poi motor ani rwalin hemi hian chuanin nang male ke mai na kan in biak theina kan tong sia thi I choi sang ingai sang ang tin chuti rwal chuan indian kan ni chuanin india rama kan tong poi mo tak hindi hi kan ngai poi mo tel turani ti kha aron soya nangle ke po hianin chu chu veina hianin kan ngai to tharle angai katia kan tong hi amoya atha nangle ke hian kan man tampo le adar chakdona chuwang chuan hemi thedar konga po hianin nangle ke hi kan poimo ni ti kha veina hian she tharle ila atho me हमारा अगला कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे जो कि फिर से बातें सुनकर शायद हम लोग ऊब चुके होंगे और यहाँ कई लोगों को मैं देख रही हूँ कई लोग ऊँग भी रहे हैं तो उन सबको जगाने के लिए एक बार फिर से संगीत का माहौल बनाने के लिए सुजन सुनार को अनुरोध करना चाहूँगी कुदबेंगी निलो लोमत्यांग ओ कुदबेन ते खा कंती कन जवाई ती थे अनिया नसदेव देव खान बेंग छीनी लमो
तेरी खुद गर्जी ना देख चुना चाहूं कैसे तेरी खुद गर्जी किसी ठोर टिके ना पाऊं कैसे तेरी खुद गर्जी ना देख चुना चाहूं कैसे तेरी खुद गर्जी किसी ठोर टिके ना पाऊं ओ बन लिया अपना पैगंबर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाही रास्ता देखे हो दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी लब नमक रमेना मिसिर कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी मस्त मोला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंदर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया सुजन जी को भी हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर और मन को लुभाने देने वाली ये जो गीत थी, इसको हमें सुनाया। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरणों में आ चुके हैं और मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि हमारे एडीई है और हिंदी अधिकारी भी है, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और धन्यवाद, इनके धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम सभी लोग यहाँ पर आकर एक फ़ोटो सेशन होगा, तो कोई भी बाहर ना जाएं। और हमारे बाहर जाते ही जलपान हम सब के इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखें। तो ना चुआनिन कन्हुन तोपलम कन लो थेंगता लोम थूते सही तोरिन कन एडीई ले हिंदी ऑफिसर निबोक पु ओम प्रकाश त्रिपाठी कन सो मंगा अनि हियानिन thu asoi zo a kan zawai ni lai hmuna hianin thla la kho tur ani dona chu chuak lawila tan chuan kan chwa vele solai a son pona sonin ei tur tui tak takin mil long hwa kan ni ti pokha singhal bokila tha ome sir आइए। आज इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि
डॉक्टर अमीश वर्मा जी, हमारे केंद्र के केंद्राध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यक्रम प्रमुख जी और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, आज हमारा हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह, और इसमें मैं तो चूँकि हिंदी बेल्ट से आया हूँ और गोरखपुर केंद्र में बहुत सारे हिंदी के इस तरह की एक्टिविटी में मैं सम्मिलित रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा देख रहा हूँ और बड़ी गंभीरता से इसकी तैयारी किया गया है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर अमीश वर्मा जी, जो सहाचार्य मिजोरम यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी बहुत ही गंभीर बातें हिंदी के विषय में और भारतीयता के बारे में उन्होंने बोला। मुझे बहुत मतलब चिंतन का, वास्तव में हिंदी जो है बोलने की तो है, लेकिन ये चिंतन की भाषा भी है। और जैसे हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय ने बोला कि हम यहाँ मिजोरम से जैसे ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट को छोड़ते हैं तो हिंदी एक बहुत सरल तरीके से कहा जाए तो हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है, और इससे कि हम लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमको सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए हम लोग, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हिंदी को अपने से ज़्यादा हमको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जो जैसे हम लोग हैं यहाँ मिजोरम के लोग हैं, यहाँ सर्विस कर रहे हैं सपोज अपने दूरदर्शन में, लेकिन जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मिजोरम से बाहर जाए। तो कनेक्टिंग लैंग्वेज जो हमारी संपर्क भाषा है वो हिंदी थोड़ा उसमें ज़्यादा सहयोगी होगी, ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा कि हम अपने बाहर के छोटे मोटे चीज़ों को हम कर सकें। और हिंदी जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अमीश वर्मा सर ने बोला कि हिंदी की वजह से ही भारतीयता का मतलब हिंदी नहीं है, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस भाषा का भी सम्मान और उस भाषा का महत्व वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उतना ही है जितना हिंदी बेल्ट में हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो बहुत डॉक्टर साहब की बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और चूँकि मैं भी तो एक नॉर्थ इंडिया से आकर के आने के पहले मैं भी ऐसा ही कुछ सोचा करता था, क्योंकि जब कहीं दूसरी क्षेत्र में कोई नहीं जाता है तो थोड़ा उसको लगता है कि जो दुनिया है सब यही इतनी है। तो हर भाषा का अपना महत्व है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि हिंदी हमारी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र भूभाग में एक संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए इस हिंदी का महत्व है। और हम लोग, चूँकि मैं हिंदी अधिकारी हूँ इस केंद्र का, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ हमारी एक्टिविटी हिंदी में बढ़े, और इस हिंदी में एक्टिविटी के लिए बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं, हालांकि उन्होंने उसको वो किया, एक तरह से रोमन लैंग्वेज एक कहा जा सकता है, लेकिन उनको खुद पता नहीं होगा
कि उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर कट, बहुत क्लियर था। तो ये बड़ी एक तरह से आश्चर्य की बात है, बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीश वर्मा जी आए और उन्होंने बहुत कीमती समय अपना दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे जितने प्रतिभागी रहे जिन्होंने पुरस्कार जीता, उनको बहुत बहुत बधाई। और लोगों ने अपना समय दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा इस चीज़ को देख करके मुझे बड़ी खुशी है कि इस समारोह को सफल बनाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही वो श्रीमती जेनी का, और मैं तो उनको बहुत दिल से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।